ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. Can you make the coast of spotlight? So again, we'll continue. In the second chapter, it looks little complicated because you'll find the same thing again and again, same thing again and again. Just 1 minute.
Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Prabhuji. Okay. So we are continuing from the 16th verse, second chapter. So the second chapter is very you have to be courageous to understand the second chapter. I will try to make it friendly, but it is not so. Okay. So we are continuing from the 16th shloka. So what we saw in the 15th shloka, can anybody tell me? 15th shloka. Yam hina gatayante te purusham purusharshava samadukha sukham dhidam somrita tattvaya kalpate. Anyway, those who are present, I am asking them only. If you can remember something. Yes, Prabhuji. Yes. We should be undisturbed in positive situations and negative situations. And that person is eligible to go back to Godhead. Okay. So first of all, how many of you are thinking that the second chapter is little complicated? You are honest. So let's first see the bird's eye view. What is in the second chapter? The entire purpose of Bhagavad Gita is Krishna is telling Arjuna to perform his duty. What is the duty of every person? To be the devotee of Krishna. That is the duty of every person. That is the duty. Becoming sannyasi, that is, or grihastha, that is not the duty. That is a means. Somebody, कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला, अपना कर्म करने को, हिंदी में कर्म बोलते हैं, कर्म बोलना चाहिए, नॉर्थ के लोग कर्म बोलते हैं, कर्म कर्म करने को बोला है. हमारे ये प्रभु जी सार्वभौम प्रभु बहुत बोलते हैं भगवान ऐसा करता है. थोड़ा हिंदी है उनका, हिंदी सिंधी भाषा है. हम कैसे बोलेंगे भगवान ने ऐसा किया, प्रभु जी क्या बोलते हैं भगवान ऐसा करता है. वो सिंधी टोन है. अच्छा लिख जाते थे, बहुत स्वीट. तो लोग बोलते भगवान ने तो गीता में कर्म करने को बोला है. नहीं, ऐसा नहीं. भगवान ने अर्जुन को उसका ड्यूटी करने को बोला. ड्यूटी क्या है कि भगवान की आज्ञा का पालन, ये ड्यूटी. ड्यूटी युद्ध करना या कर्म करना या चैंटिंग करना नहीं है. अगर भगवान आपको कल बोलेंगे चैंटिंग छोड़ के तुम ना फाइटिंग करो, करेंगे आप? जैसे हनुमान जी को बोला भगवान ने फाइटिंग करो, किया. अपना पोजीशन छोड़ा. जब भगवान ने हनुमान जी को बोला अभी तुम फाइटिंग मत करो, अब तुम सपोर्टर बनो और अर्जुन को फाइट करने दो. ठीक है भाई, मतलब भगवान चाहते कि अभी अर्जुन को हीरो बनाए, तो बैकग्राउंड में रहो बैकग्राउंड में. सेम थिंग जाम्बुआन भी समुद्र को लांग सकते थे. अरे जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को कितनी बार परिक्रमा किया वामन के पैर को, क्या वो समुद्र पे जा नहीं सकते? लेकिन नहीं, उनको पता कि अभी हनुमान जी को हीरो बनना, ये भगवान की इच्छा है. तो बोले हनुमान तू जम मार मेरे वास. रिमाइंड उन्होंने किया लेकिन क्रेडिट नहीं दिया. तो भगवत गीता इज ओनली फॉर द डिवोशन ओनली. यहाँ पे अर्जुन को भगवान बोल रहे कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करके तुम फाइट करो, ये मैं चाहता हूँ. देयरफॉर दैट इज डिवोशन. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. नाउ इस सेकंड चैप्टर में क्या है, 1-2 वर्सेस 1 से 9 तक अर्जुना सरेंडर टू कृष्ण एंड बेग्स फॉर गाइडेंस. बर्ड्स आई व्यू समझना चाहिए. नाउ टू एनकरेज अर्जुना टू फाइट, Krishna has to speak him that whatever reason he has told, compassion, adharma, this, that, correct. So one by one, Krishna will break all those arguments. So first 10 to 30, Krishna instructs Arjuna that he is not killing the Bhishma and Drona, because he cannot kill them. They are not body, they are soul, and nobody can kill the soul. So he will give so many arguments that body is always going to die and soul will never die, therefore kill. Correct. So that's why in 10 to 30, Krishna instructs on the immutable spirit soul. The essence is, it is all about the spirit soul. And why is telling about the spirit soul?
so that he don't lament. इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो 31 to 37 में, ठीक है, अर्जुन बोलते कि मतलब भगवान ने इसमें मॉडर्न आर्ग्यूमेंट यूज किए कि ठीक है, आई डोंट बिलीव इन सोल थ्योरी एंड ऑल दैट, ठीक है, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन सोल थ्योरी, यू आर अ क्षत्रिय, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, दैट इज अ कर्म कांड, यू विल गो टू स्वर्ग, so therefore do your duty. If you don't believe on the spirit soul, ठीक है ना, do your duty. If Arjun says I don't want heavenly planets, I have nothing to do, ठीक है, even if you don't want to do anything, then do nishkam karma yoga. Baba, you are a kshatriya, you are supposed to do your duty. Don't expect any fruit, but you do your duty, na. If you don't do your duty as a kshatriya, then many people will not follow. And he gives the example of Janaka and all those things. So this section 38 to 53 is nothing but the seed for third chapter, Karma Yoga, and fifth chapter, Nishkam Karma. Okay. And if Arjun says, okay, if I do my Nishkam Karma Yoga, but I am killing these people, what will happen to me? My mind will go crazy. He says, no. Because when you do Nishkam Karma Yoga, you will develop the knowledge and you will become Sthita Prajna. And then he will ask, what is the Sthita Prajna? What are the symptoms of Sthita Prajna? Then the entire section of 54 to 72 is what? Sthita Prajna se ka bhasha samadhi tasya keshava. Sthita kim prabhashita kim asita prajeta. Okay. तो क्योंकि कनेक्शन क्या है, स्थित प्रज्ञ आया कहाँ से? सडनली कृष्ण अर्जुन को सोल के बारे में मतलब लास्ट में ये स्थित प्रज्ञ क्यों आया, समझता ही नहीं हमें कारण क्यों आया, क्योंकि जब निष्काम कर्म योग फॉलो करते हैं तो आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, स्थित प्रज्ञ एकदम फिक्स्ड। फिर ऐसे व्यक्ति के सिम्टम क्या ऐसे, वो क्वेश्चन पूछा जाए। अभी आपको क्लियर हो गया सेकंड चैप्टर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब अगर ज्यादा डीप में जाएंगे तो सोचेंगे मैं कहाँ पे गोते खा रहा हूँ। वैसे ये उपनिषद है और भगवत गीता में सबसे टफ चैप्टर सेकंड चैप्टर, सबसे टफ, इतना सब कुछ पूरा भगवत गीता का नटशल में बता। क्लियर? तो अभी हम कौन से सेक्शन में है? 10 to 30, 10 to 30 के सेक्शन में स्पिरिट सोल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। किसके ऊपर? तो अभी बर्ड्स आयु से अभी हम जूम इन जा रहे हैं, जूम आउट जूम इन, बी क्लियर। जूम आउट जूम इन, अभी जूम इन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जूम इन। फिर जब समय आएगा तो जूम आउट करूंगा। देखो आज का अगर आपने प्रभु जी का लेक्चर अटेंड किया तो आप हंसेंगे, लेकिन मैं आपको रुलाने वाला। भागवतम मतलब हंसना है और भगवत गीता का फिलोसॉफी मतलब बाल खड़े हो जाएगा। ऐसा 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 डीप फिलोसॉफी प्रोफेशन दी है, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। And ऐसा भक्ति शास्त्री ऐसा है ही नहीं। तो भागवत सुनो, इसलिए मेरा भगवत गीता ज्यादा मुश्किल है, भागवतम बढ़िया फिलोसॉफी है। अब बहुत कुछ बोल सकते, भक्ति शास्त्र में मुझे पॉइंट टू पॉइंट बोलना पड़ेगा। इसलिए ओके, तो अगेन अभी हम एंड से पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ तो एंड वाले रुक जाते हैं। चलो लास्ट नंबर अभी आवाज देता हूँ, डिवोटी आया क्या देखते हैं, थोड़ा चेक करते हैं ना। कभी कभी मुझे मेरा कोर्स का देखना होगा। महावन गोविंद प्रभु है 26 नंबर, अनिकेत पाटिल प्रभु है 25 नंबर, निशिता माता जी है 24 नंबर। है तो पढ़िए, यस प्रभु पढ़ जी। सकते हो। तो 16 श्लोक है ना प्रभु जी? हाँ 60, ओके। ट्रांसलेशन की श्लोका। लोग पढ़ी। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः अभयोरपि दृष्टोऽन्त स्तवन्योस्तावदर्शिभिः। Translation: Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. ओके,
तो इसका हम देखते हैं अर्थ क्या। अभी पहले इसका बैकग्राउंड बताते हैं। अभी 16 से 25 तक कृष्णा विल एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द सोल, द क्वालिटीज ऑफ द सोल. What are the qualities of the soul? Now, in the 15th chapter, Krishna told Arjuna, Yamina Vyathayanti. The Dhir Purusha. Okay. Hoila Dhir Purusha. What will happen to those who attain the level of discrimination? He, for like whatever material happiness, he will not be too much overwhelmed. And if the lament, because of too much misery, he will not do the lamentation. Equipoise. Equipoise. Now, exactly what happens, that is explained in the 16th chapter, 16th sloka. One who has equipoise, what kind of knowledge he will develop when he acts according to the 15th chapter, 15th sloka, what kind of knowledge he will develop. That is mentioned in this sloka. So what is the sloka here? Okay. न असत विद्यते, असत भाव न विद्यते, असत भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते. इसका असत भाव न विद्यते, इसका अर्थ क्या है? असत भाव, असत मतलब बॉडी, सत मतलब सोल. यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे सोल कहाँ दिया? यस, सत मतलब सोल. बॉडी इज असत बिकॉज बॉडी विल नॉट रिमेन. असत भाव न विद्यते, जो असत भाव है, मटेरियल बॉडी विल नॉट रिमेन. तो संस्कृत ऐसा एनकैप्सुलेटेड लैंग्वेज है, एक वर्ड में ठम बॉम्ब छिपा. असत भावना मतलब मटेरियल बॉडी विल नॉट रिमेन. तो प्रभुपाद जी उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं? नॉन एग्जिस्टेंट, देयर इज नो मटेरियल बॉडी, देयर इज नो एंडरेंस. एंड सत, सत न, सत अभाव न विद्यते, भाव अभाव. सत मतलब आत्मा, अभाव नो चेंज. आत्मा कभी चेंज हो नहीं सकता, एज इट इज है. भले शरीर में चेंज हो जाए, शरीर टूट जाए, उसका मृत्यु हो जाए, उसमें चेंजेस होते, लेकिन आत्मा में कभी भी न होते हैं. और ये वो जानता है. तत्वदर्शी भी तू उभयो अपि अनयो. जो तत्वदर्शी होती व्यक्ति वो दोनों को जानता है. और ये दोनों को स्टडी करके उन्होंने इसका कंक्लूजन किया है. क्या कंक्लूजन किया है? कि इटर्नल सोल देयर इज नो चेंज, and the material body there is no endurance, means permanency, it will dwindle. अभी प्रभुपाद जी पर में काफी इधर का पूरा बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री पूरा काफी टफ दिया हुआ है. रिमूवल ऑफ द इग्नोरेंस involves the reestablishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipper. The consequent difference between the part and parcel living entities and the. So first of all, Baldev Vidyabhushan says, in all the schools, there is only one thing, is that the bhakti. But first of all, they explain that you are actually permanent soul, because material body cannot have relationship with the permanent Krishna. Right now, the body cannot have relationship with Krishna because Krishna is eternal. So therefore, first they will prove that you are eternal, Atma. And when you understand that you are Atma, then you have to develop the relationship of body, Supreme Paramatma. आत्मा, अगर शारीरिक का शरीर से संबंध हो सकता है, लेकिन आत्मा का शरीर से नहीं हो सकता है. आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ हो सकता है. जब आप आत्मा का संबंध एक शरीर से लगाना चाहते हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. फ्रस्ट्रेशन की we are a spirit soul, but we are trying to establish relationship with the impermanent material body.
and therefore you will be always incompatibility. अभी सीधा स्वामी ने एक स्टेटमेंट लिखा है, I was sleeping and I was completely unaware of it. ठीक है, अभी आप लोग उसको केयरफुली सुनिए. I was sleeping last night and I was completely unaware of entire sleep. ठीक है, आपको समझा के वापस बोलो. I was sleeping last night and I was completely unaware of sleep. इसका आत्मा के साथ कुछ संबंध क्या मुझे बता, ऐसे सीधा स्वामी बता. सोचिए कितने बुद्धिमान है. अभी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बताइए. तो जो आत्मा है वो शरीर के अंदर है और वो स्वप्न के माफिक अनुभव कर रहा है संसार, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मैं स्वप्न के माफिक अनुभव कर रहा हूँ. नहीं, हमें क्या प्रूव करना है कि मैं आत्मा हूं? ये स्टेटमेंट से प्रूव करेगा हम आत्मा. कैसे कर सकते? सिंपल स्टेटमेंट. सीधा स्वामी का क्या बुद्धि है. सिंपल स्टेटमेंट से बता रहे कि हम आत्मा है. सोचिए भैया. वही Say that Prabhu, the body was sleeping, but he was. अभी किसने बोला? मैंने बोला संतोष. उसने क्या, वो क्या स्टेटमेंट कर रहा है कि आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट एंड आई वॉज कंप्लीटली अनअवेयर. मतलब उसका माइंड सो रहा था, उसका बुद्धि सो रहा था, लेकिन फिर बोल कैसे रहा हो कि आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट. इट मीन्स सोल इज बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द फॉल्स. ऐसा कितनी बार बोलते हैं ना हम कि मैं टोटल अनकॉन्शियस हो गया था. आय मतलब कौन बाबा? आत्मा. मतलब आत्मा का एग्जिस्टेंस हमेशा ही है. आप सो भी रहे तो भी है. आत्मा कभी सोने से. सिंपल आर्ग्यूमेंट सीधा स्वामी ने किया है. सोचिए क्या बुद्धिमान है. क्लियर? Prabhuji, you said mind was also sleeping. So mind sleeps or no? यस, माइंड इज स्लीपिंग, व्हाई नॉट? जो बुद्धि dreams तो होते हैं प्रभुजी. sleeping means it is not active. Sleeping is not, but sometimes when you are dreaming, it is active. जब डीप स्लीप होता है, जब आपको ड्रीम नहीं आता है, तब वो अच्छा स्लीप होता है. ड्रीम में आ रहा है मतलब आप बहुत ज्यादा रजोगुण में कि आपका माइंड अभी भी. इसलिए तो लोगों को पिल्स खाना पड़ रहा है ना. सोने के लिए क्या खाना पड़ रहा है उनको? पिल्स खाना पड़ रहा है, क्योंकि सटल बॉडी उसका बहुत ज्यादा एक्टिव होगी. आत्मा को सोना, क्योंकि अभी जब आप 6 घंटा कल सोए थे, आपके साथ क्या हुआ तो आपको पता होना चाहिए ना. अगर आपका माइंड जिंदा है या माइंड एक्टिव है या बुद्धि एक्टिव है, पता होना चाहिए. हाँ, ड्रीम आ रहा है तो आपको पता कि मैंने कल रात 3 देखा. जिसको डीप स्लीप होता है उसको केवल इतना आता था कि मैं कितने बजे सोया था और कितने उठा. बाकी क्या हुआ कुछ पता नहीं. ऐसे लोग रहते जिनको ट्रेन में भी पूरा नींद आता है, उठाना पड़ता, अरे स्टेशन है ऐसा. और मुझे तो एक से नींद नहीं आती. तो ऐसे लोग होते हैं. तो अभी उसको कहाँ पता चला कि भाई क्या हुआ. या कुछ लोग तो नींद में भागते हैं, टेरेस पर सोते हैं, उनको कुछ पता नहीं. हाँ, तो क्यों पता नहीं. बट सोया था उसको पता है कि मैं कल यहाँ पे सोया था. मतलब आत्मा उसके भी. किसका कुछ क्वेश्चन था क्या? हाथ को ऊपर किया था ना. नहीं गया. ठीक है. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन. हाँ हाँ हम लोग ये बोलते हैं कि क्योंकि हम ये बोल रहे हैं मेरा हाथ है, ये मेरा आंख है, ये मेरा बॉडी है, हाँ तो हाँ मैं कौन है? आत्मा. बट प्रभु जी, कई बार जब हम लोग बोलते हैं कि उसकी आत्मा या मेरी आत्मा, कभी हम लोग ये तो नहीं बोलते कि मेरे अंदर, मतलब इस बॉडी के अंदर मैं हूँ. मैं कभी तक मतलब ऐसा किसी ने कुछ बोला नहीं. तो why we always say कि since we are saying this is my body, this is my hand, this is the proof that we are soul, not the body. We never say कि मैं इसके अंदर हूँ, मैं इस
मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि दिस आर्ग्यूमेंट विच वी प्रूव कि मेरा हाथ और ये और कि प्रूव करते हैं कि दिस वी आर सोल, बट हम लोग मेरी आत्मा हाँ, भी बोलते हैं, मेरी आत्मा भी आर्ग्यूमेंट समझ गए। नहीं, मुझे समझ गया कि हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं ना, डिस्कवर योर सेल्फ बोलते हैं। देखिए, हम क्या बोलते हैं, ये हाथ किसका है, ये मेरा है, ऐसे लोगों को मैं खड़े करते हैं ना। ये सिर किसका है, मेरा। पैर किसके, मेरे। मेरे मतलब किसके, ऐसा हम लोगों का आर्गुमेंट करते हैं। तो आपका कहना है कि हम जी कभी ऐसा नहीं बोलते कि हम ऐसा क्यों बोलते, मेरी आत्मा, मैं आत्मा क्यों नहीं बोलते। कारण क्या है कि हम, हमारा जो भाषा है ना, वो भी शारीरिक स्तर पे चला गया है। मेरी, मेरे, मैं आत्मा। कुछ कुछ बुद्धिमान लोग बोलते हैं अहम, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए तो तत्व, इसमें उपदेश में तो ऐसे शब्द दिए ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं वो तत्व, मेरे अंदर को नहीं, मैं खुद तत्व हूँ। उसके ऊपर ये शरीर है, तत्व के ऊपर, ऐसे वो बोलते हैं। ये हम जो बोलते हैं, ये लौकिक भाषा है। कौन सी भाषा है? लौकिक भाषा में तो भौतिकवाद आने वाला है ना। क्योंकि अगर लौकिक लोगों को हम बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, तो लोग आपको हंसेंगे, क्या कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, तत्वज्ञानी लोगों के बीच में तो बोलेंगे वाह वाह क्या बुद्धिमान है। और वहां पे बोलेंगे मैं शरीर हूँ या मेरा है, तो बोलेंगे ये बुद्धू है, निकल जाए यहाँ से, यहाँ पे बैठने का लायक नहीं है। ऐसा, जैसे ये यूनिवर्सिटी था, नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां पे अगर कोई आता है, गार्ड उसको पूछता है तू कौन है, अगर वो बोलता है कि मैं ये आदमी हूँ इस गांव का, बोलते तो निकल जाए यहाँ से। अगर वो बोलेंगे मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अंदर आ जाओ, गाड़ी उसको अंदर आने का, गार्ड उसको बाहर भगा देता। अभी वैसे यूनिवर्सिटी कहाँ पे तो सब भौतिक जगतवादी में भौतिकवादी लोग है। अगर आप बोलेंगे मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, क्या आप मेरे अंदर, गजब बोलेंगे। आप उल्टे लोग हो गए। क्लियर। लेकिन सीधा स्वामी ने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो कितना जबरदस्त, कि आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब आए मतलब कौन, फिर तुझे कैसे पता तू सो रहा था? क्योंकि जब सो रहा था तो पता नहीं होना चाहिए, सब कुछ सो रहा था ना, तो तुझे कैसे पता? अगर तू सो रहा था तो तुझे पता कैसे है ना, क्योंकि समझता ही नहीं ना क्या होता है। लेकिन वो सब बोल रहा है, मतलब वो अलग व्यक्ति। ठीक है। इसलिए तो भागवत गीता में एक श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति तथैव चान्य। आश्चर्य वदति तथैव, है ना, श्लोक है, आता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा अद्भुत है, ये है वो है, और कुछ समझने के बाद भी बोलते हैं हमको समझता नहीं। ऐसा श्लोक आता ही है। ऐसा ही आत्मा क्या है। भगवान की स्टोरी समझना आसान है, लेकिन आत्मा समझना और मुश्किल है। इसलिए आत्मा साक्षात्कार से इम्पोर्टेंट सिंपल क्या है, परमात्मा का साक्षात्कार। और जब हम परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो आत्मा का आराम हो जाता है। सिर्फ अपना साक्षात्कार करते जाएंगे तो इतना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन वही भगवान की भक्ति का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी की जरूरत पड़ेगी। हाँ? क्योंकि जीवन और स्वरूप कृष्ण नित्य जान विजय है क्या? हाँ? इसमें सेंसेस और स्पिरिट मीन्स व्हाट, क्या भेजा है मतलब? तो प्रभु क्या जी है ये? वो ऑन द वे हाँ, टू बोलिए कृष्ण बोलिए। उसमें था कि इट फॉलोज दैट इफ स्पिरिट इज एंजॉइंग इट मस्ट हैव इट्स सेंसेस आल्सो। तो यहाँ पे सेंसेस मतलब आत्मा जो भी हाँ, मतलब हम जो बराबर। एक मिनट में बताता हूँ मैं आपको। अभी जैसे आपको आंखों से दिखता है, एक्चुअली आपको आंखों से नहीं दिख रहा, ये तो उसका इंस्ट्रूमेंट। चक्षु इंद्रिय अलग होती है, चतुर्थ इंद्रिय अलग होती है, ये तो उसका एक, जैसे चक्षु में ऐसा दिख रहा है, सब एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, दिख तो आपको उससे रहा है। तो उसी तरह से सटल इंद्रिय है और आत्मा की इंद्रिय, एक्चुअली वो है जो एक है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कंप्लीटली एग्जिबिट करता है, मटेरियल वर्ल्ड में वो एग्जिबिट नहीं करता। मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सटल फॉर्म है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द सीड विल बिकम द प्रॉपर ट्री। In the spiritual world, there is no difference between Atma and body. When the material world, Atma is covered by the subtle body and graph. तो तो एक्चुअली इंद्रिया बिलोंग टू द सोल, ये तो उसका आउटलेट है। ये क्या है? आउटलेट है।
इससे कुछ कुछ लोगों को आंख बंद होने के बाद भी दिखता है. They have the power, they can see through the fingers also. Because the Chakshundriya is there and Chakshundriya can act through the hand also. That is possible. That is possible. हो गया माता जी क्लियर? हाँ जी. आगे जाते हैं थोड़ा. अभी 16 चैप्टर हो गया. नाउ 16 श्लोका हो गया. 70. 17 में क्या होता है? तो अर्जुन ने आर्गुमेंट किया. भगवान ने बोला तुम मारो उनको. लेकिन अर्जुन बोले लेकिन बाबा आप आत्मा बोल रहे हो, लेकिन आत्मा और शरीर में है. अभी मैं भीष्म द्रोण को मार दूंगा तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा ना, क्योंकि शरीर में बैठा है. जैसे किसी घर में कोई रह रहा है, घर को बम से उड़ा देंगे तो घर के साथ वो भी मर जाएगा ना. आर्गुमेंट तो सही है, लौकिक आर्गुमेंट. हाँ, आप एक घर में रह रहे हो, छोड़ दो, घर को उड़ा देंगे तो अंदर का आदमी भी मर जाएगा. उसी तरह से अर्जुन ने बोला भगवान ठीक है आप ऐसा बोल रहे हो आत्मा है, लेकिन अगर मैंने भीष्म द्रोण के बॉडी को उड़ा दिया तो वो मर जाएंगे, क्योंकि आत्मा तो उनके शरीर में रह रहा है. तो भगवान बोलते हैं तेरी लौकिक बुद्धि बाजू में रख. और अगला श्लोक पढ़. ठीक है, नंबर 24 कौन है? अभी 20 किसने पढ़ा था? 24 ने पढ़ लिया. 23 है क्या कोई? मैं हूँ प्रभु जी. प्रभु हाँ, जी मैं पढ़ी. कौन पढ़े को बोल रहा है? 22 नंबर 23 हूँ 22 मैं. नंबर पढ़ी. हाँ 23, 24 पढ़िए. प्रभु ये 27 भी है. 22 कहाँ है? मैम सॉरी माता कब पढ़ी है? आपको बोलना चाहिए था ना. हाँ. अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि. हाँ, तो अभी That यहाँ which हाथ pervades पढ़िए. that which pervades the entire body you should know to be the indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. बहुत अच्छा. देखिए अभी संस्कृत शब्दों पे फोकस कीजिए. विधि, विधि मतलब जान लो. ये आज्ञार्थक है, ऑर्डर. जान लो. क्या जान लो? ये न इदम सर्वम ततम, इस शरीर में जो फैला हुआ है, तत्व अविनाशी, वो अविनाशी. समझा कि नहीं आप? सिंपल संस्कृत है ना, समझ आया ना? विधि जान लो अर्जुन. एन इदम सर्वम ततम, जो इस शरीर में फैला हुआ है वो कैसा है? तत्, वो तू अविनाशी, वो परंतु क्या है? दैट इज इम्पेरिशेबल. यस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति, और उसका विनाश कभी भी नहीं हो सकता, उसको कोई मार नहीं सकता. हाँ? अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित्, कोई ऐसा हुआ नहीं, न अर्हति. तो अर्जुन को ये प्रूव करके दिखाया कि अर्जुन जो बोल रहा है कि मैंने अगर घर को उड़ा दिया तो आत्मा मर जाएगा, शरीर को उड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ये भौतिक लेवल पे हो सकता है, लेकिन उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता. और फ्यूचर में वो बोलेंगे नैनम छिंदंती शस्त्राणी, बोलेंगे और भी आगे भी बोलेंगे, है ना. अभी आपको थोड़ा लिंक लग रहा है कि नहीं? थोड़ा आसान करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि फिलोसॉफी डायलॉग के रूप में बताना, डायलॉग के रूप में. अर्जुन उसको कोई मार नहीं सकता, इसलिए युद्ध करो. इसलिए तुम क्या करो, उन दोनों को मार. माता जी पढ़ी है उसका. एक मिनट, अभी मैं इसमें क्या क्या, काफी बड़ा श्लोक है, बहुत बड़ा तात्पर्य. नाउ प्रभुपाद will give the qualities of the आत्मा. बालस्य शतभागस्य शत कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेयस चान्त्य कल्पते. तो इसमें कुछ लोग आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, जो फैला हुआ है वो छोटा कैसे हो सकता, ऐसा आर्ग्यूमेंट डालते. तो फिर उसमें आर्ग्यूमेंट क्या दिया, जैसे सनशाइन है, दिखेगा नहीं लेकिन पूरे जगत में कैसे फैला है, उसी तरह से आत्मा बहुत छोटा है लेकिन पूरे हाथी के शरीर को भी वो प्रिवेट कर सकता है. ये आत्मा का ऐसा क्वालिटीज है. ये आत्मा का, जैसा हाथी का इतना शरीर है उसका आत्मा बड़ा नहीं होता, आत्मा का साइज सेम होता है. जैसे सन रेज होते हैं,
एक छोटे रूम में भी आएंगे, बड़े बंगलों में भी दिखेंगे आप, पूरे फैले हुए सेम, लेकिन है तो सनरेज। उसी तरह से ये आर्गुमेंट है कि आत्मा इतना छोटा होता है, फिर इतने बड़े शरीर में कैसे वो व्यक्त शरीर में फैल कैसे जाता है। तो आर्गुमेंट क्या दिया गया है कि कोई चीज छोटी होती है इसका अर्थ नहीं कि वो व्याप्त नहीं हो सकती। जैसे सनशाइन की क्वालिटीज है वैसे आत्मा की क्वालिटीज है, और काफी पुरानों से प्रभुपाद जी इसको बताते हैं। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एटॉमिक सोल इज एडमिटेड इन ऑल वैदिक लिटरेचर, and it is also actually felt in the practical experience of any sane man. Only the insane man can think of this atomic soul as all-pervading Vishnu Tattva. The influence of the atomic soul can be spread all over a particular body. According to the Mukunda Upanishad, this atomic soul is situated in the heart of every living entity. And because the measurement of the atomic soul is beyond the power of appreciation of the material scientists, some of them assert foolishly that there is no soul. The individual atomic soul is definitely there in the heart along with the super soul, and thus all the energies of the bodily movement are emanating from this part of the body. Okay, such atomic particles of the spirit whole are compared to the sunshine molecule. Correct? Agya se. In the sunshine, there are innumerable radiant molecules. Similarly, the fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks, the rays of the Supreme Lord, and called by the name Prabha or the superior energy. So whether one follows the Vedic knowledge or modern science, one cannot deny the existence of the spirit soul in the body. And the science of soul is explicitly explained in the Bhagavad Gita by personality of Godhead. तो कृष्ण भगवान ये मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से भी बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मॉडर्न साइंटिस्ट अभी है, पहले भी ऐसे नास्तिक लोग थे। यावत जीवे तावत जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूषस्य देहस्य कुतः पुनः आत्मन भवेत्। अरे भाई ऐसा ये चार्वाक मुनि बोलता है कि यावत जीवे, जब तक जी रहे हो घी खा के जियो, पैसा नहीं तो चोरी करो उधार ले लो, लेकिन घी के साथ जियो। भाई भस्मीभूत से देह से, अगर देह भस्म हो जाएंगे तो वापस कहाँ आने वाला किसको पता है। कुतः पुनः आत्मन भवेत्। तो ये मॉडर्न साइंटिस्ट को ये नए नहीं है, ये पूरे पुराने भी ऐसे लोकाईदास ऐसे लोग थे जो ये मानते हैं कि शरीर हम शरीर है, ऐसा ये लोग मानते, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कॉम्बिनेशन से एटॉमिक पार्टिकल से शरीर बनता है और बाद में नष्ट होता है। तो भगवान ये भी आर्गुमेंट को आगे लेने वाले, इसको भी भगवान आगे लेने वाले हैं। तो इसलिए इस 16 का पर्पट काफी बड़ा है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण का भी जबरदस्त इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ऐसे ऐसे अलग आर्गुमेंट उसमें दिए हैं कि एटॉमिक पार्टिकल है कैसे पैदा हो सकता है, फिर ये पुरानी उपनिषद, ऐसा जबरदस्त इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी अर्जुन क्या बोलते हैं देखते हैं, है ना, अर्जुन जी क्या बोलते हैं। तो अभी इसमें क्या किया है, 16 और 17 को कंबाइन किया। क्या बोलते हैं, 18 श्लोका पढ़ी अभी, 27 हो गया, 24 हो गया, 23। यस प्रभु जी। अंतवंतन इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारत। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharat. अभी देखो ये 3-4 श्लोक को कंक्लूड किया भगवान ने कि तुम्हें जो लग रहा है कि तुम्हें भीष्म द्रोण को मारना है, तो वो तो मरने वाले हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तो कभी मरेंगे नहीं, ना तुम उसको मार सकते हो, लेकिन उनका शरीर तो टिकने वाला नहीं है। इससे तू तेरा धर्म करना। हाँ, तो बॉडी itself is unimportant. Arjuna was advised to fight and not sacrifice the cause of religion for the material bodily consideration. There is no chance of maintaining it indefinitely, but the spirit soul is so minute that it cannot even be seen by the enemy, to say nothing of being killed. As mentioned in the previous verse, it is too small that no one can have any idea how to measure dimensions. So from the both viewpoints, there is no cause of lamentation, because the living entities, as he cannot be killed,
nor can material body be saved. So therefore Arjuna, धर्म करो, फाइट करो, नहीं तो तुम्हारा पाप हो जाएगा, आत्मा का पाप हो जाएगा। पाप शरीर को नहीं होता, आत्मा को लगता, क्योंकि शरीर नष्ट हो गया तो पाप नष्ट हो जाए, लेकिन नहीं होता, वो कंटिन्यू करता है। क्या करता है वो? कंटिन्यू करता है। इसीलिए क्यों तुम रिलीजन कर रहे हो? फाइट करो। क्या करो? फाइट करो। डोंट गिव अप योर धर्म। तो धर्म की यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। धर्म को तुम छोड़ो मत बाबा, ये सब चीजें होते रहेंगी, लेकिन आप आपका धर्म फॉलो करो और फाइट करो। ये 18 में कंक्लूजन होता है। यहाँ पे बलदेव भूषण बोलते हैं, बिकॉज द जीवा एंड द बॉडी हैव सच अ नेचर्स, इटर्नल एंड डिस्ट्रिक्टेबल, neither the jiva nor his body is worthy of lamentation. The body of jiva is created by the Lord for the jiva's enjoyment and his liberation, which can both be attained through the execution of dharma. Therefore, since both earthly enjoyment and liberation are attained by dharma, मतलब क्या? देखो, जीव को अगर एंजॉयमेंट भी करना है तो उसको धर्म पालन करना पड़ेगा, ठीक है, एंड आत्मा को भी लिबरेशन चाहिए तो उसको भी धर्म पालन करना पड़ेगा जो भगवान ने दिया। अभी भगवान बोले तुम मारो, तुम्हारा ड्यूटी करो। आवाज आ रहा है क्या? अरे बोल, आवाज आ रहा है क्या? बीच में गया था। यस प्रभु जी, आ रही है, आवाज आ रही। हाँ, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है, तुम जीवात्मा हो ना, तो तुम्हें इस भौतिक जगत में भी आनंद प्राप्त हो जाए, और आत्मा हो तो तुम्हें लिबरेशन, तो दोनों के लिए धर्म करना पड़ेगा। धर्म मतलब मेरी आज्ञा का पालन, ऐसे बलदेव विद्याभूषण बोलते, ठीक है। तो फिर अर्जुन ने आर्गुमेंट दिया, बाबा ठीक है, लेकिन अभी जो भीष्म को जो जन्म हुआ है तो कुछ कारण के लिए हुआ है, तो मैं उसको क्यों मारूं? तो भगवान बोलते सोल का तो कभी जीवन जन्म होता ही नहीं। हाँ? न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नेक्स्ट कोरस का अर्थ पढ़िए 22। श्लोक 20। हाँ पढ़िए 19 दोनों। 19 या 20 प्रभु जी? 19 नहीं, सॉरी 20 ना, 19 हो गया ना? नहीं नहीं 19 हाँ ही नहीं, होगा। न जायते म्रियते या कदाचित् 19 बाकी ब्रो जी। 19 ये एवं एनम वेति हंतारम, य येन वेति हन्तारं यच्चैन मन्यते हतम् उभौ त्वयि न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते। पढ़िए आता क्या? Neither he who thinks the living entity the failure, nor he who thinks the slain is in knowledge. For the self slays not, nor in is slain. हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है अरे प्रभु बोल, जी। आ रही है बीच में प्रभु जी। एकदम आपका बीच में डिस्टर्ब आ रहा था ना, किचन से कुछ बर्तन जा रहे थे, खट 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 आवाज आ रहा अच्छी आ रही था। है आपको आया था क्या कुछ डिस्टर्बेंस? नहीं ना? प्रभु। नो हेडफोन प्रभु। ही यूज करना प्रभु जी प्लीज, अच्छी आती है आवाज। ओके ठीक हाँ जी प्रभु जी। है। हेडफोन यूज करता हूँ क्या, मुझे भी, क्योंकि साउंड पोल्यूशन बहुत डेंजर होता है। ओके 19 श्लोक। आपको सभी श्लोक सेम दिखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और भगवान बार बार घुमा फिरा के वही पॉइंट पे आ रहे हैं कि तुम्हें मारना चाहिए और फाइट करना। बस ये आत्मा के ऊपर डिस्कशन है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ नहीं समझा, हेडलाइन क्या है? नेचर ऑफ द आत्मा, बस उतना याद रखो। Those प्रभु who जी think that this, हाँ सॉरी प्रभु जी, अभी भगवान तो अर्जुन को बता रहे हैं उनका स्पिरिचुअल ड्यूटी करने के लिए कि ड्यूटी करो। हमें कैसे पता चलेगा प्रभु जी? मैंने इसके पहले भी बोला है कि we need the personal guide. I told you earlier. Yes or no? We need the personal guide according to your level,
according to your faith. The Guru gives instruction to the Shishya. He gives the general instruction in the books. Jesse Prabhupada has given instruction to each and every disciple through the letter. Right. But those letters are not Bhagavad, because they are contextual instructions. And what absolute instruction he has given, they are given in the Bhagavad. Clear? Like one disciple, he said, I am a blessing for you to take divorce. Then another devotee said, Prabhupada, आपने तो book में लिखा है divorce नहीं होना चाहिए. Prabhupada बोले, but he is going, anyway he is going to take divorce. So if I say no, he will go to hell. So therefore I said, okay. So therefore he is saved from the path. So अभी आप इसको ये कर सकते हो क्या? जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ना. ये पर्सनल उस लेवल के हिसाब से उसको दिया है. तो अभी ये ऋत्विक का बहुत चल रहा है. ऋत्विक मुझे एक डिवोटी आर्गुमेंट कर रहा था. मतलब वो डिवोटी ऋत्विक का बहुत बड़ा व्यक्ति है. मैंने बोला देखिए मेरा आपको शुभकामनाएं हैं और मुझे सब यूट्यूब से मत बताना. यूट्यूब पढ़ के कोई भगवान का भक्त नहीं बन सकता. या यूट्यूब से तुम भगवान की भक्ति की प्रैक्टिस नहीं कर सकते. फिर भगवद गीता साइड में रख दो ना. तद्विधि प्रणिपाते न परिपृष्टने सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः. श्लोक को आप निकाल दो ना. फिर यूट्यूब डाल दो ना. यूट्यूब पर प्रणिपाते, यूट्यूब परिप्रश्न निकाल दो गुरु को. यूट्यूब से आपके अंदर का अविद्या निकल नहीं सकता. आपका हृदय दौर्बल्य नहीं जा सकता. जो कल हमने डिस्कस किया था, हृदय दौर्बल्य विल ओनली गो बाय स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ द वैष्णव हु इज प्रैक्टिसिंग इट. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. कितना भी आप यूट्यूब पे लेक्चर सुनिए ना, बड़े बड़े लोगों को, हमारे अंदर प्रभु, ये प्रभु, जो सुनना है सुनो, समझ रहे. लेकिन ये जो हृदय दौर्बल्य कब जा सकता है? जब पर्सनली किसी वैष्णव से आप गाइडेंस ले रहे हैं, जो आपको बोल सकता है तू गधा है, ऐसा मत कर, तू स्टॉप दिस. वो आपको जानता है आपकी गलतियां क्या है और वो आपको डायरेक्टली बोलेंगे, तो आपको अच्छा लगता है. हाँ मुझे अच्छा कर रहे, मेरा भला कर रहे, मेरी पिटाई कर रहे. हाँ फिर आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं करूँ. वो इधर बैठ के बता सकता है तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर, इधर वीक पॉइंट है. हाँ आपको जब आप किसी के साथ ऑलरेडी रह चुके हो, उसके गाइडेंस ले चुके, फिर आपको फोन के ऊपर भी गाइडेंस कर सकता है. लेकिन वो भी बोलेगा मैं फोन से गाइड कर, लेकिन तू जाके लोकल वैष्णव के साथ सत्संग कर, मंदिर में सेवा कर, लोकल प्रोग्राम अटेंड कर. उसका गाइडेंस भी वैसे होता है. वो नहीं बोला है बस मेरे तू लेक्चर सुना और मंदिर में मत, नहीं, फिजिकली एसोसिएशन का चाहिए. तो ये ऋत्विक वालों को मैंने एक ही चीज बोला, देखो आप बार बार बोल रहे हो, ठीक है, कि मैं ये नहीं बोला कि कोई भी गुरु प्रभुपाद को रिप्लेस कर सकता है. प्रभुपाद ने ये बोला कि देयर विल बी नो मोर सक्सेसर ऑफ हिम. सक्सेसर मीन्स पीपल थिंक, जैसे बाहर की मूवमेंट होती है ना, कि प्रभुपाद के बाद कौन एक आचार्य होगा. एक आचार्य नहीं होगा. देयर विल नॉट बी वन सक्सेसर, देयर विल बी मेनी सक्सेसर. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जो एक्सक्लूसिवनेस होता है वो नष्ट हो जाता है. जैसे दूसरे संप्रदाय में कि एक ही गुरु है, सब ब्लॉक करेंगे, उसको ये करेंगे. इसलिए प्रभुपाद ने क्या सोचा कि भाई अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो प्रीचिंग बढ़ेगा, नहीं तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रीचिंग नहीं होता. इसलिए देयर विल बी मल्टीपल गुरु, नॉट वन गुरु, मेनी गुरु. व्हाई मेनी गुरु? एंड यू गुरु मीन्स एग्जैक्टली व्हाट. See, they will not be like Nitya Siddha, pure like Prabhupada. Okay, what they are doing, they are following the Prabhupada instruction. They are taking complete responsibility of the whichever people they are guiding. Okay, you guide 100 people only. You go to their houses, check what practice they are doing, how they are living exactly. उनके घर में मॉर्निंग प्रोग्राम का स्टैंडर्ड क्या, उनके घर में टीवी है क्या, बच्चे कैसे रहते हैं, बूढ़े लोग कितने उनकी सेवा कर रहे हैं क्या, हर दिन सुबह शाम मंगलारती करके कुछ कर रहे क्या, स्पिरिचुअल प्रोग्राम कर रहे क्या, धर्म कर रहे, दान कर रहे. तो जाके पूछना पड़ेगा. 100 डिसाइपल ले लो ना, ज्यादा क्यों ज्यादा जा रहे हो. जाके उनके नंबर आपके मोबाइल में होने चाहिए. शिष्य को लगता है कि मेरे घर में गुरु आए. कितने लोगों को आपको लगता है कि हमारे घर में कभी गुरु है हमारे? ऑनेस्टली बोलो. ज्यादा फेंकना मत, स्पिरिचुअली मुझे मत बोलना कि नहीं नहीं हम सेटिस्फाइड हो वाणी से, वो सब छोड़ो. ऑनेस्टली बोलना कि आपको इमोशनली अच्छा लगेगा कि नहीं गुरु आपके घर, तो फिर आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी ना. आपके अंदर कुछ अनर्थ है, वो सडनली लगे अरे यार सब मेरे को छोड़ना चाहिए, बस हो गया, मैं सब छोड़ दूंगा, टीवी छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा. गुरु जी मेरे घर में इतना समय दिया, अभी बस हो गया. और उनको बोलेंगे हम, गुरु जी मैं कितना मूर्ख हूँ, देखिए मैं टीवी देख रहा हूँ. बोलेंगे बंद कर इसको,
ये कर, ऐसे डांटेंगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पिताजी ने झपड़ मारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, पिता है ना, मारेगा ना। आपके भले के लिए मार रहा है। तो ये पॉसिबल कब होगा? तो इसलिए ऋत्विक सिस्टम क्यों एग्जिस्टिंग है, हमारी मिस्टेक है, इसलिए ऋत्विक से एग्जिस्ट में। हाँ, भगवान की इच्छा के सिवा ऋत्विक जी भी नहीं, एक सांस भी ले नहीं सकता, कैसे ले सकता? अगर भगवान उसको मार नहीं सकते क्या? मार सकते हैं। तो मिस्टेक हमारा भी है कि वे हमें प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन बोला है वो करो। शास्त्र में क्लियर लिखा है कि वन शुड नॉट टेक टू मेनी डिसिपल, क्लियर लिखा है शास्त्र में। हाँ, तो यू अभी ऐसा रिफॉर्म चल रहा है, मैंने बोला ना बाबा, आप एक सिटी में हो, आपकी कैपेसिटी 1000 की 1000, आपकी कैपेसिटी 200 की 200 है। और ऐसा नहीं कि गुरु बना मतलब उसके इधर ऐसे हेलो आना चाहिए, उसको राधा कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, वो सब जरूरी नहीं है। हाँ, चानों का पालन कर रहा है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है वो ठीक से कर रहा है, शास्त्र को ठीक से पढ़ रहा है, प्रभुपाद जी का मूल मिशन उसने ठीक से समझा है, और वो लोगों को कृष्ण की तरफ, परंपरा की तरफ लेके जा रहा है, कि दूसरी जगह भटका नहीं रहा। उनकी जो आचार्य की जो फाउंडर आचार्य की इंस्ट्रक्शन है उसी के ऊपर चर्चा कर रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया कुछ बोल रहा है। तो वो आपको उसे, और वो ये नहीं बोला कि मैं ही ओनली गुरु, ये भी बोलते हैं कि दूसरे भी मेरे जैसे और गुरु है, आपको जरूरत पड़ा तो उनके साथ भी आप जाके नॉलेज लेके आ सकते। ऐसा नहीं कि आई एम ओनली द एक्सक्लूसिव गुरु, यू शुड ओनली हियर माय लेक्चर। So then that because of that so much disturbance has caused in ISKCON, that you worship me like Prabhupada, ऐसे ये करो, पंखा करो, ये करो, उसकी व्यास पूजा प्रॉपर से बड़ी, और प्रॉपर की व्यास पूजा में जाएंगे नहीं तो छोटा आर्डर डालेंगे, ये तो मिस्टेक हो जाएगा। ऐसा होता है। इसलिए तो ये सब चीजें क्यों आ रही है, आपका जो प्रश्न का उत्तर ये है। बार बार लोग मुझे ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा यू आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, भाई दे अपना बोलिए, don't give the birth to the baby and then throw the on the road. ये सबका जड़ ये है, बार बार ये सेम चीज आते रहता है। किसने प्रश्न पूछा था? अमित जोशी प्रभु ना। ठीक है प्रभु, राधानंद प्रभु आपको कुछ कमेंट करना? प्रभु जी एक प्रश्न था, जैसे गुरु का जो आदेश है उसको हम, अगर हम आचार्यों की लीला देखे, पास टाइम देखे, दृष्टांत देखे, तो इन सम सिचुएशंस दे फॉलो गुरुज इंस्ट्रक्शंस एज इट इज, और कुछ इंस्टेंसेस में वो गुरु की इंस्ट्रक्शन का सारांश लेते हैं और सारांश अप्लाई करते हैं। तो उदाहरण के तौर से, जैसे अभी आपने बताया कि एक शास्त्र की उक्ति है कि बहुत सारे शिष्य आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा, डोंट एक्सेप्ट एनी डिसाइपल्स। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये जो मेरे डिसाइपल वो है, वो मैं एक्चुअली मेरे डिसाइपल्स नहीं है, वो मेरे गुरु है, इसलिए मैं डिसाइपल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। फिर उसी तरह दूसरा आदेश गौर किशोरदास बाबा जी ने सरस्वती ठाकुर को दिया कि कलकत्ता में मत रहो, वो काली का स्थान है, कली का स्थान है। तो बोलते हैं मैं जहां रहता हूँ वो सुरभि कुंज है, वो कली का स्थान नहीं है। तो वो उन्होंने सारांश अप्लाई किया। अभी जैसे अर्जुन की भी हम बात करें भगवत गीता में, तो वो फिर सुनने के बाद वो एंड में गेट्स रेडी टू फाइट, वो लिटरली उन्होंने इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट कर ली कि फाइट करना है। लेकिन जब अश्वत्थामा का वध करना था, कृष्ण ने बोला इसका वध करो, तो उन्होंने लिटरली वध नहीं किया, उन्होंने सारांश लिया और उसको उसकी मूछें काट दी, दाढ़ी काट दी। तो हम देखते कि जो महान भक्त है वो भी देखते कि गुरु का जो आदेश वो कैसे फॉलो करना है, वो सारांश लेते हैं और सारांश अप्लाई करते हैं। तो अभी जैसे तो काफी टाइम अगर हम भी सारांश न ले, लिटरली कुछ चीज करे, तो उससे भी हानि हो सकती है। लेकिन उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए एक डिसाइपल को कि गुरु का क्या आदेश है, कब लिटरली फॉलो करना है, कब उसका सारांश लेना है, तो वो समझना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए तो शिष्य बनना मतलब कोई शिष्य थोड़ी बनेगा, उसको नॉलेज होना चाहिए शास्त्रों का। वो जो शास्त्र में स्टोरी नहीं है, गुरु घोड़े पे बैठा है, शिष्य पीछे बैठा है, वो बोलते जो पीछे गिरा उसको उठा ले, आपको स्टोरी सुना होगा। तो इसलिए तो शास्त्र इम्पोर्टेंट है, इसलिए शास्त्र को वैल्यू दिया है। भाई एक जो मूर्ख व्यक्ति हो कभी शिष्य नहीं बन सकता। अज्ञाच सत्य दानश्च, बराबर है। तो और कहाँ पे लिटरली फॉलो करना है, कहाँ पे ये करना भी, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जो ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है, तो उनको उनके गुरु का हाथ पता है ना, उनका साधना कितना था। हाँ, और अभी मैंने जो चर्चा किया कि गुरु को
क्योंकि हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, and so therefore somebody can accept 1 lakh disciples also. Like Prabhupada was able to connect to each and every disciple because he was not sleeping now. He was not sleeping. He was sleeping for 2-3 hours only, 4 hours only, and he has written letters to each and every disciple. If somebody can have that capacity, he can have 10,000 disciples. शास्त्र में क्या लिखा है कि one should not accept 20 disciples. Why? Because you will not be able to guide them. Because if he can guide by going into their heart, no problem. Like Shukdev Goswami can enter in the hearts of the trees also. He can guide to them also. And some guru will not be able to meet his disciple, but still he can take care of them, no problem. Like माधवेंद्र पुरी, एक ही बार दीक्षा देगी, जीवन में कभी नहीं मिले, लेकिन वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसको उद्धार करेंगे। नित्यानंद प्रभु अपनी स्पिरिचुअल पावर से उद्धार करेंगे। तो हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे जो सिद्ध गुरु होते हैं, बराबर है। जो सिद्ध गुरु होते हैं वो तो इस भौतिक जगत के है नहीं, वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अरे कुछ गुरु तो अपने डेड बॉडी को जीवन किया है। सारंग ठाकुर ने तो एक मृत आत्मा को दीक्षा देके जिंदा किया, ऐसा कोई है अभी है क्या, मुझे बताओ। तो इसीलिए सारा सार विचार शास्त्र को टॉप लेके अंडरस्टैंडिंग से धीरे धीरे, ऐसा कुछ करिश्मा नहीं दिखाना हमें, कुछ ऐसा पावर नहीं दिखाना कि मैं पावर कर दूंगा, ऐसा कोई दिखा दे तो हो सकता है, लेकिन वी आर सर्वसामान्य नॉर्मल पीपल, सो वी गो हाउ टू द शास्त्र बाय बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट शिक्षा का अर्थ क्या है, दीक्षा का अर्थ क्या है कि वो शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का जप अच्छे से करना है, 4 नियमों का पालन करना है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, और श्रीमद् भागवतम में जो लिखा है उसको हाउ टू ट्राई टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसके लिए कितना अभी मेरी लेवल है कि मैं 10-15 लोगों को ठीक से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा करिश्मेटिक आदमी नहीं हूँ। तो मैं बोलूंगा मैं बस इतना, बाकी लोगों को लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन पर्सनल गाइडेंस आई एम गिविंग टू यू सम 50 फैमिलीज ओनली। सो मैं चेक कर सकता हूँ ये कुछ उठ रहे क्या है, उनको कुछ इश्यू जा रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, उनको अभी से कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे सिखानी है, गर्भधान संस्कार कैसे सिखाने, ताकि बच्चों से भी प्रॉब्लम लोगों को होते हैं, फैमिली मैटर को कैसे डील करना है, भाई के साथ कैसे डील करना है, माता पिता के साथ कैसे डील करना है, सास के साथ कैसे डील करना है, नेबर के साथ, ऐसे हर चीज में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो समय तो जाता है। अब जिसके पास स्पिरिचुअल पावर इतनी होती है कि वो इतना चैंटिंग करके वो डिसाइबल के अंदर से उसको एकदम पावरफुल कर सकता है, तो वो अलग व्यक्ति होता है। जैसे महाप्रभु ने एक बार एम्ब्रेस किया तो वो पूरे आचार्य होके पूरे गांव को एम्ब्रेस कर करके ड्यूटी बना रहा है। अब ऐसी ताकत मेरे अंदर तो नहीं है ना। तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द शिक्षा। तो शिक्षा दीक्षा का अर्थ जानना चाहिए, और शास्त्र में दिया है। अगर आप पढ़ेंगे चैतन्य चेतामृत तो क्लियर बोला कि दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों सेम होते हैं, और मेन पर्पस क्या होता है, शिक्षा देना। हु डिलीवरी, एक पेपर लिखा था हिजोरा भक्ति समत महाराज ने, हु डिलीवर्स गुरु, नो, हु डिलीवर्स गुरु, शास्त्र, कृष्ण, वैष्णव, ये सब बॉडी मिलके एक व्यक्ति को डिलीवर करते बैक टू गॉड। सबका रोल होता है। तो यहाँ पे शिक्षा का दीक्षा का अर्थ क्या होता है, टू मेक एनवायरमेंट फॉर द डिसाइपल so that lifelong he will be able to chant Hare Krishna, follow 4 principles, read Srimad Bhagavatam, and try to live according to dharma, so that at the end of life he will go back to God. ये शिक्षा का और दीक्षा का अर्थ है। क्लियर प्रभु? प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, वो समझ में आया। मेरा प्रश्न था कि एज ए डिसाइपल व्हेन गुरु गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, जैसे ये तो धर्म के बारे में सबको मालूम है यहाँ कि ये हमें रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, इस तरह से भक्ति करनी है, इस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी है, उसमें मुझे लिटरली फॉलो करना है या एसेंस लेना है? जैसे मैंने जो उदाहरण दिया, उसके लिए सिंपल बताता हूँ मैं, आपका गुरु के साथ कनेक्शन कैसा है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कनेक्शन जो उनके गुरु के साथ था, हमारा है क्या, ये हमें समझना चाहिए। और फिर इसके लिए क्या होता है कि वैष्णव भी आते हैं ना, दूसरे शिक्षा गुरु भी आते हैं, जो गुरु के हार्ट को जान सकते हैं, जो शास्त्र को जान सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो हमें डायरेक्ट गुरु को पूछना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी गुरु का एक्सेस नहीं हमें। पहले क्या होता था कि गुरु का एक्सेस नहीं होता था, वो भजनानंदी रहते थे, लेकिन अभी गुरु का, जैसे प्रभुपाद के शिष्यों ने उनके प्रभुपाद को क्लियर कट पूछा, प्रभुपाद व्हाट वी शुड डू, दे विल राइट लेटर, यू टेल मी। और उन्होंने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कितनी बार सेम इंस्ट्रक्शन लिटरली बोली, प्रीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रिंट द बुक्स, गो टू द फॉरेन कंट्री। इसेंस नहीं बोला था। और वो दूसरे शिष्यों ने क्या सोचा,
कि पृथ्वीचार्य नगराधिकार मतलब बस भारत में प्रचार करना है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को लिटरली बोला यू हैव टू गेट आउट ऑफ द इंडिया, वेयर टू गो दैट आल्सो ही टोल्ड, एंड ही आल्सो टोल्ड राइट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेसिफिकली बोला था। तो हमारे इसमें भी हमें कुछ गुरु ने इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक दिए, और आपको कुछ परेशानी हो रही है तो आप तो एक्सेस आपको है ना गुरु को, है हाँ कि जी। नहीं? हाँ, तो फिर तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि गुरु को एक्सेस होना चाहिए हर एक शिष्य को, क्योंकि ना अगर अभी ऐसे सिद्ध गुरु है, ऐसा कोई मतलब बोलना नहीं कि भाई ऐसे आपके हार्ट को बता सकता है बैठ के, या ऐसा कोई सिद्ध शिष्य जो गुरु के हार्ट में क्या चल रहा है बता सकता, तो बेटर कम्युनिकेट। और इसमें ऐसा नहीं कि ये सब गलत है, नहीं, ये सही है, बिकॉज वी आर मटेरियल वर्ल्ड में है, हम बद्ध जीवात्मा है, तो हमें अधिकार है हर चीज को पूछने का कि भाई मैं तो एक सिद्धात्मा नहीं हूँ। सिद्धात्मा जो शिष्य बनता है वो तो दिखाने के लिए बन रहा है, लेकिन हमको जरूरी मेरा तो सौभाग्य है, गुरु एक्सेसिबल है, गुरु मुझे रिप्लाई भी करते, लेकिन हमेशा कहते हैं यथा चेसी तथा कुरु। इसलिए फिर नहीं, जो वो क्या ऑप्शन देखो, गुरु क्या हाँ करते हैं ना, आपको बार बार वो, क्योंकि वो कभी भी फोर्स नहीं करना चाहते। हाँ तो क्या, क्योंकि सपोज अगर उसने आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया और आपने फॉलो नहीं किया तो आपका नर्क का रास्ता क्लियर है, बराबर है, क्योंकि गुरु अवज्ञा हो जाएगा। इसलिए गुरु आर सो मर्सीफुल दैट दे विल ऑलवेज कीप वन क्लॉज, इतने जैसे तथा करो, मतलब एटलीस्ट उनका कृपा आप पे बने रहेगा, और आपको अंदर से नहीं लगेगा अरे यार मैंने गुरु का इंस्ट्रक्शन नहीं लिया, तो और अंदर से आप हीप हो जाओ, मैं और अटैक करेंगे आप, कैसे भी करके गुरु का कनेक्शन तोड़ देंगे। तो गुरु का नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, छोड़ दे अभी तू कुछ काम करना, समझ गया ना? सो देयरफॉर सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन क्लेरिफाई विद हिम, जैसे आपको कुछ आपने थोड़ा किया, गुरु ने ऐसा ऐसा किया है, इज इट ओके, हाँ वेरी गुड, तो आपके टोनिंग उनके वर्ड से भी समझता है। ये बेस्ट होता है उनके आजू बाजू में जो शिष्य रहते हैं ना, हमेशा जैसे जो गुरु के जो साथ रहते हैं उसका भी कुछ एक स्थान होता है, जैसे भक्ति चारू महाराज वगैरह गुरु जी के साथ प्रभुपाद के एक साथ साथ रहे, तो उनको कभी कभी गुरु अनऑफिशियली भी बताते रहते हैं, तो वो उनका मूड समझ में आता है कि नहीं? और जब भक्ति चारू महाराज ने बार बार बोला कि प्रभुपाद सुबह शाम उठ के बोलते थे वर्णाश्रम 50% मिशन, ये वो बार उनको क्लियर पता है, उनको कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा उनके लेक्चर में, मेरे पास उनके लेक्चर का बुक है भक्ति चारू महाराज का, बोलते थे प्रभुपाद सुबह शाम जो भी गेस्ट है उसको वही बताते थे, मैंने 50% मिशन बाकी वर्णाश्रम की स्थापना करनी, ये करनी, वो बार बार, मतलब उनका अंदर का इच्छा बाहर आ रहा है ना, बराबर है कि नहीं? ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हाँ अमित, तब पूछो। प्रभु जी सॉरी, और एक फॉलोअप क्वेश्चन। आप ही तो आप सीड हो क्वेश्चन के। सॉरी प्रभु जी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु जी अभी राधानाथ बोल रहे थे प्रभु जी कि उनके तो गुरु है, उनको बताते हैं। मेरा थोड़ा सा और एक ऊपर क्वेश्चन है कि मेरे जो गुरु है वो वही गुरु है, ये ये कैसे पता चलेगा कि यही गुरु है? टिपिकली ऐसे भी बोलते हैं ना कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी गुरु विल सीक यू, तो हाउ डू वी नो? हाँ तो वो आर वे रेडी। वी रेडी, ये दैट्स जो करेक्ट प्रभु शास्त्र जी। में जो दिया रहता है ना, तो वो शास्त्र में क्या लिखा है पता है? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, यू शुड गो टू गुरु व्हेन योर मटेरियल डिजायर फिनिश। राइट प्रभु जी, देन ओनली यू गो टू गुरु। हमारे तो मटेरियल जैसे डिजायर तो फिनिश ही नहीं हो रहा हिज है। होलीनेस गौर गोविंद महाराज है, जब वो घर छोड़ के गुरु की तलाश में गए, समझ रहे हो आप, तब जाके वो प्रभुपाद के पास जब बोले, प्रभुपाद बोले मैं तेरे को संन्यास दूंगा, तो टेंशन मत ले, उनके बोलने के पहले बोलते आई विल गिव यू संन्यास। तो ऐसे लेवल के डिसाइपल, तो वैसे लेवल के गुरु, तो इसलिए अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच, जैसे श्रीनिवास आचार्य रो रहे थे कि मुझे गुरु भेजिए, तो भगवान इधर वृंदावन में श्यामानंद को बोले अरे जा उधर, मेरा एक शिष्य वहां पे बैठा है, बोले मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन छोड़ के। फिर हर 2-3 महीने में भगवान ने उनको डांटा कि तू जा रहा है कि नहीं? वो मेरा एक सिंसियर भक्त है उधर बुला रहा है, जाओ उधर उसको शिक्षा दे क्या। तो श्यामानंद प्रभु गए उधर में उड़ीसा में, और उसको दीक्षा दे के आए रसिकानंद प्रभु को। हाँ, तो ऐसा आप अगर भगवान को बार बार चिल्ला रहे हो, भगवान आपका रिप्रेजेंटेटिव भेजो मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अरेंज करेंगे। एक हो गया। और दूसरा है कि प्रैक्टिकल भी आपको सोचना चाहिए। ये सब कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि हमने फॉलोअर बनाए लेकिन गुरु नहीं बनाए, फॉलोअर बनाए लेकिन गुरु नहीं बनाए। ऐसा कोई इस्कॉन में प्रोग्राम नहीं है। हाँ, जैसे यू कॉल सम वानप्रस्था पीपल, let them for 5 years get up at 2 o'clock,
chant 64 rounds, read 3 hours of Bhagavatam, attend all the Aarti, evening Aarti, discussion, preaching, and then launch them. Give them 5 years of full training of all the Shastra 24/7. Where is the program? We are only making the followers. Whether there is any Kshatriya problem here, क्षत्रिय का ट्रेनिंग दिया जाएगा, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, चाणक्य नीति, श्रूडनेस, क्योंकि इस्कॉन सोसाइटी में भी चोरी होती है, कोई आता है खटक से पैसे लेके चोरी जाता है, हमें लगता है बस उसके ऊपर भर, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ये सब क्वालिटी लानी पड़ेंगी, क्षत्रियो को ऐसा निर्माण करना पड़ेगा जो खतरनाक होते हैं, जिनको पता है ये व्यक्ति क्यों आया है, इसको कितना अधिकार देना चाहिए, या तो इस्कॉन का लॉस हो जाता है, इस्कॉन की बदनामी होती है। ऐसे कितने डेंजर लोग इस्कॉन में घुसे और ऐसे कांड करके भाग जाता है, इनोसेंट लोग लगता है, देखो रोज इस्कॉन में ऐसा हुआ, अरे वो इस्कॉन का है ही नहीं, वो अल्टीमेट मोटिव से आया था। इस्कॉन का क्या, कोई भी व्यक्ति कैसे इस्कॉन होता है, उसको क्या चाहिए तुमको पता है। क्षत्रिय इतने डेंजर रहते थे कि कोई भी व्यक्ति उनको चीट नहीं कर सकता, ऐसे उनको गुप्तचर रहेंगे, उसके पीछे ये लगाएंगे, ऐसे लोग भी चाहिए हमें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो रहा है। हाँ, आपका एक छोटा मठ है, 10-12 साधु सुबह शाम चैंटिंग करते हैं, उधर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आया तो सब रूल लगेंगे, आप रन करना है, टफ नट आएंगे, सिंपल लोग आएंगे, जिनको बचाना भी पड़ेगा ऐसे ठगों से, समझ रहे हो, तो उसके लिए ऐसी क्षत्रियो की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। हाँ, क्षत्रिय की क्वालिटीज होती है, वो ऐसे मरने को डरता नहीं, आगे जाएंगे, कोई ऐसा चोर में आएगा और तेरे को खत्म कर दूंगा, उनको बॉडीली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। शस्त्रों की प्रभुपाद के ऐसे स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा, बोले तो क्या बोल, प्रभुपाद ने बोला वी हैव टू क्रिएट द क्षत्रिय, गिव देम ट्रेनिंग ऑफ ऑल द थिंग्स, ऐसा लिखा है प्रभुपाद। किसने प्रश्न पूछा था? हाँ, तो इसलिए आप गुरु का क्या है, दो चीज है, अभी तो जो फ्यूचर में होता है वो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम प्रेयर करेंगे, यू प्रे टू कृष्णा, यू प्रे टू कृष्णा विल सेंड यू, ओके, दैट ओनली आई कैन टेल यू, ठीक है एंड अदर्स वेट फॉर द व्हेन द रिफॉर्म्स हैपन इन इस्कॉन। सपोज इस्कॉन में ऐसा बोला है, ठीक है, इस सिटी में 5 गुरु हम लॉन्च कर रहे हैं, नॉट ओनली 1 गुरु, 10 गुरुज आर देयर, यू चूज, एंड यू डोंट मेक द गुरु का भाव मत करना, गुरु मिला तो मेरा जीवन सक, ऐसा नहीं है, आपको प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका जीवन सक्सेस होने वाला है। जब सपोज आपने बहुत बड़ा गुरु किया, अब प्रभुपाद के बुक ही नहीं पढ़ रहा है, तो क्या फायदा उसका, आपका लिबरेशन ऐसे होने वाला है क्या? प्रभुपाद ने बोला जो मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता मेरा डिसेबल है ही नहीं, प्रभुपाद ने दीक्षा दिया और 4 दिन के बाद उनके शिष्य नियम तोड़े थे, तो कुछ लोगों ने प्रभुपाद दे आर ब्रेकिंग, the disciples are not following your instruction. Prabhupada said, they are not my disciples. But Prabhupada, you give Diksha. They said, I give Diksha. But I told, whosoever is following my instruction is my disciple. He will remain my, I have given them chance. आपको जैसे आईआईटी में एंट्री मिली है और आपके फर्स्ट ईयर में सब बैक है तो आउट आईआईटी से बाहर है ना, आईआईटी में जैसे एंट्री नहीं करना है, वहां जाके वहां के रूल रेगुलेशन फॉलो करने। तो डिसाइपल कोई भी किसी के गुरु का होने दो, अगर आप जो डिसाइपल का करते हुए नहीं करोगे तो डिसाइपल नहीं रहोगे, ये सबके हृदय में डालना पड़ेगा, ऐसा कि मेरा गुरु ये बहुत बड़ा है, ये तेरा गुरु है, ये तो बाल बुद्धि है, तो सबके गुरु है तो सबने अपने अपने बुक लिखे, क्या आप प्रभुपाद के बुक क्यों पढ़ रहे हो? मत पढ़ो ना, कोई भी गुरु है उसके डिसाइपल को किसके बुक पढ़ने हैं, भागवतम ही पढ़ना है, उसका कोई अलग प्रोग्राम थोड़ी है, एडवांस में बेसिक तो करना पड़ेगा पहले। ठीक है क्लियर हमें तो? थैंक यू प्रभु जी। आगे जाएंगे हम, ये Yes, गुरु का टॉपिक खत्म होने वाले वाला है, उसका रूट कॉज मैंने आपको पहले बोला, हर लेक्चर में हर व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों, हर हमारे यूनिवर्सिटी के भागवतम क्लास में सेम क्वेश्चन, हमारे समर्पण ग्रुप पर सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मेरे खास दोस्त है वो, बोलता है यार तू सेम क्वेश्चन क्यों पूछता है, उनका हर जगह पे बॉइल करके ये प्रश्न का प्रश्न से उनका, फिर भी अच्छा हमारा परीक्षित महाराज है। ठीक है, अभी ब्रेक लीजिए आप, नहीं तो आपका हेड ब्रेक हो जाएगा। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. सब आए कि नहीं बाबा? अरे आए थोड़ा जल्दी से. Okay, let's go now. We have to go ahead. न जायते मियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजः नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Okay. We were supposed to do 22 ने पढ़ा ना 21. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़े. प्रभु जी श्लोका पढ़ना है। दोनों पढ़ी. न जायते म्रियते व कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For the soul there is neither birth nor death at any time. He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. Okay. So the soul is never born. So therefore, this argument he is giving that you can kill Drona and Bhishma because the soul is never born and nor it is died. So because Arjuna ने argument क्या दिया कि why should I kill them? Because उनका जन्म किसी काम के लिए हुआ, बोले ना उसका जन्म होता ही नहीं. सोल का जन्म कभी होता नहीं है. The soul is never born and never died. Neither it was born in the past nor it will born in the future. It has no creature in the past, present, or future, and no destruction. It is not killed when the body is killed. Therefore, you kill. So, पहला line न जायते मियते वा कदाचित्. The first line negates the possibility of birth and death for the jiva at the present time. The second line क्या है? न जायते मियते वा कदाचित्. नायं भूत्वा भविता वा. The second line negates the possibility of birth and death in the past and future. And therefore, what is the conclusion? Ajo nitya shashvatoyam purana. In the past, present, and future. Because of no birth, it has no previous non-existence. No non-existence. It existed all the time, shashvataha. Meaning at that time, at no time in the past, present, and future will it be destroyed. Therefore, it is eternal, nitya shashvatoyam. But because the soul exists for a long time, it can grow old. ऐसा अर्जुन ने आर्गुमेंट पूछा. बराबर है ना, जैसा हमारा एज हो जाता हम बूढ़े हो जाते हैं ना. नहीं. तो भगवान बोलते नो, दो इट इज ओल्ड पूरा, it is as if new, now, because of absence of the 6 states of transformation. Now, Shashvatoyam Puranam. ये नवा क्या है? हम देखते हैं नवा क्या है. नवा है ना पुराण. नवा मीन्स पुराण. By Siddhar and Baldev Vidyabhushan both say that Puran. This is the interpretation by Siddhar Swami and Baldev. अभी और क्या बोलते हैं कि without the death of the body, will it not die along with the body? With the death of the body, जैसे शरीर का मृत्यु होता है तो आत्मा का मृत्यु नहीं होगा क्या? No, it does not die when the body dies, because it is not joined permanently with the body. The soul is not subservient to it. न हन्यते हन्यमाने शरीर. हर एक लाइन के पीछे फिलॉसफी है. हमें लग रहा है कि हम अभी शरीर के सबॉर्डिनेट हैं, लेकिन वैसे नहीं. आत्मा शरीर का सबॉर्डिनेट नहीं है, शरीर आत्मा का सबॉर्डिनेट है. आत्मा के कारण शरीर, शरीर के कारण आत्मा नहीं है. इसीलिए जैसे कोई पैंडल है साइकिल का, साइकिल खाई से गिर गया तो पैंडल भी टूट जाएगा कि उससे अटैच्ड है. लेकिन वैसे आत्मा शरीर से अटैच नहीं है ना.
शरीर जल रहा है तो आत्मा जलता नहीं, क्योंकि वो उसके अटैचमेंट नहीं है, हमें ऐसे अज्ञान के कारण लगे। और इसीलिए आत्मज्ञान इतना पावरफुल होता है कि जब हमें समझता है तो धीरे धीरे हमें पेन भी नहीं होता। जैसे जो गोस्वामी होते हैं वो कुछ खाते क्यों नहीं है, हमें लगता होगा कि ऐसे दुखी होके खाना खाना कर रहे, और आर्टिफिशियली ऐसा नहीं है। उनको तो समय भी नहीं सोचने को कि खाना है बोल, दे आर बिजी राइटिंग द बुक्स। आर्टिफिशियली नोबडी कैन डू दिस रिनाउंसिएशन एंड सच थिंग। कि अभी खाना, जैसे हम निर्जल एकादशी को हमें समझता है कि हमारे साथ क्या होता है, पानी पानी, कितनी बार पानी का स्मरण होता है। वैसे गोस्वामियों का ऐसा नहीं कि पानी का स्मरण हो रहा है और आर्टिफिशियली बैठे हो, गलत चीज ऐसी गलत है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को बोला तू फाइटिंग कर, तू संन्यास ले नहीं सकता, आर्टिफिशियल मत कर, यूजलेस थिंग, है ना। गोस्वामी ऐसे आर्टिफिशियल नहीं करते, वो बस बुक लिख रहे हैं, भगवान की वर्शिप कर रहे हैं। और कभी उनको स्मरण हो जाता तो सोना है, ठीक है, 1 घंटा सो लेंगे, और कुछ खाना है, थोड़ा बटर मिल्क खा लेंगे, ऐसा है। वो अमर जैसा आर्टिफिशियल जैसा पांडव निर्जला आ रहा है, इस समय लोगों की हालत देख रहा हूँ, पांडव निर्जला से डरते हैं लोग। अब जो कफ वाले होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो पित्त वाले होते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। आप में से कितने लोग पित्त वाले बोलिए, उनको एकादशी मतलब परेशानी, निर्जला तो दूर है। और कफ वाले तो बोलेंगे अरे तो फास्टिंग, उनको फास्टिंग करना चाहिए कफ वाले, क्योंकि उसके शरीर में इतना कफ होता है, चर्बी होता है, उसको नष्ट होना चाहिए, उसको खर्चा करना जरूरी है फास्टिंग में। और जो पित्त वाला होता है उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसने फास्टिंग करने से और अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई फास्टिंग कर रहा है मतलब बहुत बड़ा महात्मा है, ऐसा मत समझना। वो उसका कुछ भक्ति का रिलेशनशिप नहीं है। चाहे ऑफकोर्स हमें नॉन ग्रेन नहीं खाना, क्या नहीं खाना, ग्रेन नहीं खाना। और धीरे 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 फास्टिंग करने का टेक्निक भी होता है कि कैसे फास्टिंग करना है। कि पहले एक दिन बिफोर, 1 डे बिफोर, यू हैव टू ड्रिंक द वाटर इन अ सिप। कैसे, ऐसे सिप 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 पीना है, गट गट अपच। तो जब सिप 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 पानी पीते हैं तो पूरे शरीर में जाता है, एक साथ पीते हुए यूरिन के बाहर चला जाता है, ऐसा होता है। तो 1 डे बिफोर यू हैव टू ड्रिंक वाटर सिप सिप, एंड आफ्टर 2 o'clock और 3 o'clock बेटर टू नॉट ईट सॉलिड फूड, ईट सम फ्रूट, क्योंकि दूसरे दिन पानी के कारण ज्यादा थकते हैं, खाने के कारण। और दूसरा है कि सूर्योदय के पहले 1 घंटा 5 o'clock तक आप अच्छा खासा गर्म पानी, उसमें गुड़ या कुछ ऐसा पी सकते हो, ताकि वो दिन भर आपके शरीर को एनर्जी दे। फास्टिंग सन राइज के बाद चालू होता है, 12 बजे से नहीं होता। ठीक, तो ये हो गया न जायते अपने सेवा करना। अभी प्रभुपाद जी ने पर्पट में अलग अलग श्लोक, सेम जैसे कठोपनिषद में श्लोक दिया है, न जायते मियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन्न बहुवा कश्चित अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो हन्यते हन्यमाय। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ श्लोकास फ्रॉम द डिफरेंट पुराण। There are 2 kinds of soul, namely the minute particle soul and the super soul. हाँ, इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे कि कुछ लोग ऐसे तत्ववादी होते बोलते आत्मा परमात्मा एक ही है। They don't accept the existence of परमात्मा, बोलते आत्मा से परमात्मा हम एक है, लेकिन ये गलत है। तो इसके लिए कुछ लोग ये आत्मा फिलोसॉफी का गलत यूज करते भी है, भारत में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बोलेंगे आत्मा परमात्मा एक ही है, हम भगवान है ना, हम क्या है, भगवान। तो क्लियर इसमें क्या बोला है, there are 2 kind of soul, one is the atma, paramatma, and one is the minute atma. We are atma, Lord is paramatma. Anor aniyan mahato mahyan atmasya jantor niyato guhayam tam akratu pashyati vito shako dhatu prasadan mahimanam atmanam। क्लियर दिया है। One who has become free from the material desires as well as lamentation can, by the grace of Supreme, understand the glories of this world. So, शरीर में दोनों है, जीवात्मा परमात्मा, same tree, both are sitting, but Paramatma knows everything, Atma doesn't know, because Paramatma is aware of everybody's body. We are not aware of our own body also, and whatever we are aware, that is because of the Paramatma, है ना। और हम परमात्मा से आ सकते हैं,
जब किसी का व्यक्ति का मृत्यु होता है तो परमात्मा निकल जाता है और इसलिए आत्मा उसके पीछे चला जाता है, ऐसा है। और परमात्मा उसको लेके जाता है दूसरे शरीर में, आत्मा उसको फॉलो करता है। और जब परमात्मा के जाने के कारण ही शरीर कोलैप्स होता है। जब तक परमात्मा है शरीर में चैतन्य है। ठीक है, तो नाउ अगले अभी नेक्स्ट अर्जुन का आर्गुमेंट क्या है देखते हैं। ओके, अर्जुन ने बोला लेकिन मैं इनको क्यों मारूं? हाँ, दूसरे को मारने दो ना, या ऑटोमेटिक मरने दो, उनका शरीर ऐसे डिस्ट्रॉय होने वाला है ना। तो आप आर्गुमेंट कर रहे हो कृष्णा कि शरीर का मृत्यु नहीं होता है, उसका डिग्रेडेशन है ना, तो होने दो उनके शरीर का डिग्रेडेशन, मुझे क्यों कॉज बना रहे हो? मैं कॉज नहीं बनना चाहता उनको मार, उनके शरीर का ऑटोमेटिक हो रहा है तो होने दो। तो भगवान बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। वेदा विनाशनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। नेक्स्ट डिवोटी कौन है पढ़ने वाला? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वेदा विनाशिनां नित्यं यायिनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषा पार्थ कं घतयति हन्तिकम्। Translation. O Partha, how can a person who knows that the soul is indestructible, eternal, unborn, and immutable kill anyone or cause anyone to kill? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि one who knows this, have this knowledge, he will not become the cause of anybody's killing. So therefore you fight. Therefore you, it is not that you are becoming the cause. Of course, Prabhupada ji बोलते हैं, therefore the king's punishment of hanging a murder is actually beneficial. Similarly, when Krishna orders fighting, it must be concluded that violence is for the supreme justice, and thus Arjuna should follow the instruction, knowing well that such violence committed in the act for fighting for Krishna is not violence. और एक जगह में प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन हमें इसका लाइसेंस लेके लोगों को मारना नहीं चाहिए। पिछले पर्पट में कहीं तो आया था, मैंने पढ़ा था कि ऐसा नहीं अभी बस हम आत्मा है तो मारो किसी को भी, मैं उसका कॉज नहीं बनने वाला। नहीं, यू डोंट हैव राइट इवन टू डिस्ट्रॉय समबडीज बॉडी विदाउट द शास्त्र, विदाउट द शास्त्रिकल रेफरेंस और जस्टिस। यहाँ पे भगवान खुद बोल रहे हैं, इसलिए अर्जुन को उनके शरीर को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है, नहीं तो वो अधिकार नहीं है इसका। इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जब डॉक्टर किसी का हाथ काटता है सर्जरी के लिए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉज और द बेनिफिट ऑफ द पर्सन इज फॉर योर बेनिफिट यू कैन किल समबडी एंड से दैट ये आत्मा है मैंने कहा मारा। ऐसे लोग मिस एप्लीकेशन कर सकते हैं डिमोनिक फिलोसॉफी का, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ओके, अर्जुन ने आर्गुमेंट किया था, whom do I, the Lord, cause to be killed by advising you to fight? And how do I cause anyone to be killed? And whom do you kill? And how do you kill? Okay. तो अर्जुन बोलते हैं अभी मैंने अगर फाइट किया, but by fighting a Jiva will give up the body known as Bhishma, and then you and I will be the cause of that. Correct? ठीक है, अभी अर्जुन भी फिलोसॉफिकली बोल रहे हैं, अभी वो आत्मा के लेवल पे क्या बोलते हैं, बाय माय फाइटिंग द जीवा, जो जीव इस भीष्म के शरीर में है, he will give up the body known as Bhishma, and then you and I will be the cause of that. What fault is there in a person giving up old worn cloth to put a new cloth? In a similar way, Bhishma will give up the old body and attain a new divine body. What fault is there for me and you that? तो कृष्ण भी बताते ठीक है, तुम क्या बोल रहे कि हम उसको इस शरीर से निकाल रहे, अरे बाबा लेकिन मैं अगर आपको नया कुर्ता दे रहा हूँ और पुराना कुर्ता निकालो तो क्या आप मुझे डांटोगे क्या? तो सीधे से भीष्म भी बूढ़ा हो गया है,
इतने सालों से ये पुराना कपड़ा पहन रहा है, उसको निकालने को हम मदद कर, तो वो तो एक्सेप्ट करेगा। और इसलिए ये श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। Who is the next? 17. हरेष्णु वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. Translation: As a person puts on a new garment, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. Okay. Prabhupada ji ने भगवत की दशम से कह दिया, from the old age the change is transferred to another body. This is has already been explained in the previous. Transfer of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. Correct. Upadeshta Hanumanta cha bharta bhokta maheshwara Paramatmeti chapyukta desmin purusha. The super soul fulfills the desire of the atomic soul as one friend fulfills the desire of another. The Vedas like the Mukunda Upanishad as well as Shvetavatara Upanishad compare the soul and the super soul to the two birds. हमने discuss किया. Of these two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruits of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. That's Paramatma. Krishna is the witnessing bird, Arjuna is eating bird. The Jiva soul is struggling very hard on the tree of the material body, but as soon as he agrees to accept the other bird as the supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntary surrender to Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all the lamentation. Correct. So that is very important. Application that the soul should take instruction from the super soul. But if in some way or other he turns his face to the friend, the Lord, he knows his glories. At once the suffering bird becomes free from all anxiety. दूसरा पुराण से उपनिषद से बताया. Arjuna has now turned his face toward his eternal friend Krishna and is understanding the Bhagavad Gita from him. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glories of the Lord and be free from the lamentation. Arjuna is advised therewith by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather. Already we are discussed. One who lays down his life for the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once cleansed of bodily reaction and promoted to the higher status of life. So there was no cause for Arjuna's lamentation. What he is telling, even if the Bhishma and Drona, they lay down their life for the Dharma Yuddha, they will be promoted to the heaven and they will give up this old body. So therefore you fight. Lord want him to fight. अर्जुन ने बीच में बोला, लेकिन अगर मैं उनके शरीर पे वार किया, आत्मा को लग गया तो कैसे, आत्मा का टुकड़ा हो गया, आत्मा का कोई कट हो गया, इंजरी हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना. तो भगवान बोला ऐसा नहीं है. नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चेदक्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता. अर्जुन के मन की बात कौन बताता? आचार्य बताते. अब बोले यहाँ पे कहाँ लिखा है? आचार्य की टीका में लिखा है. आचार्य ट्राइंग टू मेक इट इज लाइक अ कन्वर्सेशन. जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, जैव धर्म. आप में से कितने लोगों को पता है जैव धर्म बुक? ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर ऑथर थे ना, ऐसे मैगजीन जैसे लिखा है, तो आपको लगेगा नहीं कि फिलोसफी का डोज मिल रहा है, लेकिन ऐसा फिलोसफी का डोज है, लेकिन सब नॉवेल जैसा लिखा है. जबरदस्त ऐसे ऐसे कैरेक्टर डाले, ये वो, कि आदमी का भाई लगता है कितनी कैरेक्टर है इसके अंदर. जैसे महाभारत है ना, वैसे उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है जय धर्म. फैसिनेटिंग वे से लिखा है. और आजकल के यूथ को तो ऐसे प्रीचिंग करना पड़ेगा. अगर आप बोलेंगे बैठो मेरे सामने, तुमको मैं आत्मा का नॉलेज देता हूँ, भाग जाएंगे. ऐसे इंटरेस्टिंग भी बताना पड़ेगा. नेक्स्ट डिवोटी कौन है? हरे कृष्ण. नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत.
The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by wind. तो भगवान बोले तेरे कोई भी वेपन से आत्मा को थोड़ा भी हर्ट भी नहीं होने, ऐसा नहीं कि तुम मरेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन वो कट भी नहीं होगा। जैसे कट शब्द क्या है, छिंदन की मतलब कट का, सोचो मारना नहीं बोला है, मारना तो ऑलरेडी भगवान ने बोल दिया, मार नहीं सकते तो सेम चीज रिपीट थोड़ी करेंगे। अर्जुन ने डाउट किया भी मेरे बांध से अगर उस आत्मा को थोड़ा हट हो गया तो वो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हार्ड कट भी नहीं, जैसे शरीर को तो कट कर सकते तो आत्मा को तो कट भी नहीं कर सकते। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं वेपन्स के बारे में, बोला फायर वेपन्स वर काउंटरएक्टेड बाय वाटर वेपन्स। तो प्रभुपाद जी इज टॉकिंग अबाउट द शस्त्र विद्या एट द टाइम ऑफ द्रोणाचार्य। And even the Mayavadi cannot explain how the individual soul came into existence simply by ignorance and consequently become caught by the illusory energy. Nor was it ever possible to cut the individual soul from the original supreme soul. मतलब ये मायावती फिलोसफी है कि हम सब भगवान के एक ही है, लेकिन हम इग्नोरेंस के कारण अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि अलग कभी हुए नहीं, अलग ही हमेशा इटरनली एग्जिस्ट करता है। Because they are atomic individual souls eternally, they are prone to be covered by the illusory energy, and thus they become separated from the association of the supreme. Associations are separated. So they are eternally, so according to Bhagavad Gita, so even after being liberated from the illusion, the living entity remains a separate identity, as is evident from the teachings of Lord to Arjuna. Arjuna becomes liberated by the knowledge received from Krishna, but he never became one with Krishna. तो प्रभुपाद को जब भी चांस मिला तो मायावती को तोड़ते ही, छोड़ते नहीं कभी। तो इसको और एम्फेसिस कर रहे भगवान, ये 24 और 25 में सेम क्वालिटीज को रिपीट किया आप देखना। अच्छेद्योयम अदाह्ययम अक्लेद्यो शोषय वच नित्य सर्वगत स्थान और अचलोयम सनातनः। और 25 में क्या बोला, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम अच्युते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। तो सेम एम्फेसिस करने के लिए इतना डबल नेक्स्ट ड्यूटी पड़ी है, 24 ही पड़ी है। This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned or nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. The repetition of words signifying the eternal nature of the soul in this section is for the purpose of precisely defining the soul for those of confused intelligence. अभी भी लोगों को सोल के प्रति क्लियर नॉलेज नहीं है। Just as one will repeat several times in order to make the certain, so therefore the same चीज है repeating. This is a कलियुग, धर्म कलियुग है कि लोगों को रिपीट करना पड़ता है। सर्वगता means that soul goes into the all sorts of bodies such as a human, animal, demigod. Because it is very fine, it is called as avyakta. Next श्लोक है ना, that is mentioned avyakta. Okay, अभी प्रभुपाद जी इसमें क्या बताते हैं? All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and it remains the same atom eternally, without change. The theory of monism is very difficult to apply in this case, because the individual soul is never expected to become one homogeneously. जैसे ये इस theory के मायावाद का theory है ना, कि वे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। After liberation from the material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the supreme personality of Godhead, but the intelligent souls enter to the spiritual planet. Yes, लोग इम्पर्सनल में विलीन हो जाते हैं, मतलब उधर जाके रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिविजुअल रहते हैं। जैसे एक पेड़ के अंदर पत्ते होते हैं, पक्षी होते हैं, फल होते हैं, सब कुछ होमोजेनियस ऐसा आटा नहीं है। भले पेड़ ग्रीन दिख रहे हैं, उसके अंदर ग्रीन पेड़ भी है, ग्रीन मैंगो भी है ना, सब होमोजेनियस आटा नहीं है। मायावती की तरह होमोजेनियस आटे का गोला, उसमें भी इंडिविजुअलिटी है। उसी तरह से व्यक्ति जब परमात्मा में विलीन हो जाता है, फिर भी वो वहां पे एक स्पार्क होता ही है। लेकिन बुद्धिमान लोग भगवान के साथ रहना चाहते। जैसे आज सर्वम प्रभु को कोई क्वेश्चन पूछा था वैकुंठ और गोलोक में, तो गोलोक
भगवान का पर्सनल एबोर्ड है, जहाँ पे वो आपके साथ रस आस्वादन करना चाहे। वैकुंठ ऐश्वर्य भाव, वहां पे भी रस है लेकिन इतना शुद्ध रस नहीं है। इसलिए भगवत गीता में क्या बोला है, त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नेति मामेति सोचना जन्म कर्म च में दिव्य। इवन somebody has some material desire, he can go to Vaikuntha, but he cannot go to Golok Vrindavan. ऐसा इवन इफ बिकॉज इसमें कुछ कंडीशन नहीं डाला है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनः जन्म नेति मामेति सोच, क्लियर कट है। उसमें ये नहीं लिखा है कि बट अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनुकूल कृष्ण भक्ति होता है। आपको प्रेम भक्ति जब चाहिए, गोलोक वृंदावन में एंट्री चाहिए, तो अन्याभिलाषिता शून्यम उसका क्राइटेरिया। कोई भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं चलेगा, वैकुंठ में चलता है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के साथ इतना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं। जैसे कौन कौन सी मुक्ति वैकुंठ में, सालोक्य सारेष्टि सामीप्य, तो ये 4 मुक्ति है। जैसे सालोक्य भगवान के जैसा लोक, सामीप्य भगवान के नजदीक में, सारेष्टि भगवान के जैसा ऐश्वर्य, सारूप्य भगवान जैसा रूप, और सायुज्य हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चारों मुक्तियों में अच्छी श्रेष्ठ कौन सी, मुझे बता सकता है कोई? सालोक्य, सारेष्टि, सामीप्य, सारूप्य। सामीप्य। हाँ, क्यों? क्योंकि सामीप्य में भगवान के पास जाके थोड़ा आदान प्रदान करने का प्रयास करता है, तो वो गोलोक जा सकता है। सालोक्य क्या, ठीक है, सेम लोक पे रह रहे, फायदा क्या है, भगवान के पास हो जा रहा है। सारूप्य ठीक है, भगवान जैसा रूप लेके घूम रहा है, लेकिन भगवान के पास जाके रेसिप्रोकेशन, भगवान जैसा रूप प्राप्त होने से थोड़ी तुम भगवान बन जाते, भगवान जैसे क्वालिटी थोड़ी आएंगे। भगवान के लोक में से थोड़ी, राजा के लोक में से राजा थोड़ी बन सकता है। लेकिन सामीप्य में जो भगवान का दास बनेगा, तब उसका कुछ दास्य रस चालू हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि भगवान के गुण कैसे है, क्या अद्भुत है भगवान, धीरे धीरे एंट्री करता है। ठीक है, अभी 25 श्लोक लेंगे हम। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। नेक्स्ट डिवोटी कौन है? It is said that the soul is invisible, inconceivable, and immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. 14 नंबर चलाएगा क्या हमारे? ओके, Yes. 1 नंबर तक जाने पड़ेगा। ओके, सेम थिंग रिपीट हो गया। ये सब जानने के बाद आप कंक्लूजन है फाइट। वो सोल सर्वगत है, अव्यक्त है, because it is very fine, it is called avyakt. Because it pervades the body with consciousness, it is called achintya, beyond conception. Being beyond devoid of 6 changes such as birth, it is called as avikari. ये चेंजेस शरीर में होते हैं, आत्मा को बिल्कुल होते नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? As previously described, the magnitude of the soul is so small for a material conclusion that he cannot be seen even by the most powerful microscope. Therefore, he is invincible. Same thing Prabhupada repeated that. There is no source of understanding the identity of the father except by the authority of the mother. Similarly, there is no source of understanding the soul except by studying the Vedas. In other words, the soul is inconceivable by human experimental knowledge. The soul is conscious and consciousness and conscious. That also the statement of the Vedas we have to accept. The supreme soul is infinite and the atomic soul is infinitesimal. Therefore, the infinitesimal soul being unchangeable can never become equal to the infinite soul or the supreme person of Godhead. This concept is repeated in the Vedas in a different way just to confirm the stability of the conception of the soul. A repetition of the something is necessary in order we understand the matter thoroughly without error. Okay. ये सेक्शन में अब तक सोल के क्या क्वालिटीज देख रहे हैं? क्या सोल के क्वालिटीज 10 to 30 में। ओके, 10 to 30 में हमने सोल की क्वालिटीज देखी। अभी 25th देखा। अभी 26 to 30 में Krishna shows that there is no reason for the lamentation even if your Arjuna does not believe existence of soul. ठीक है, अगर आपको आत्मा में भरोसा नहीं है, फिर भी तुम उनको मार सकते,
The cycle of birth and death is certain and applies to everyone. So many living beings are born and died every moment. What is the use of grieving for them? Or Alice Prabhupada puts it, no one laments for the loss of certain bulk of chemicals. If you don't, that soul is not there, na? Your body is chemical, then why are you crying for the chemical? Yes or no? If you think that your body is chemical, then why are you crying for the chemical? Fight. What do you do? Fight. Clear? तो इसको हम अभी नेक्स्ट सेशन में 26 से लेके 30 हो जाएगा और उसके बाद फिर हमसा सेक्शन चालू हो रहा है कर्म कांड निष्काम कर्म एंड स्थित प्रज्ञ हम नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर देंगे थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि इसमें मुश्किल है सेम चीज रिपीट है और एनलाइटिंग रखने के लिए मुझे डिस्कशन करना पड़ा है तो मुझे पढ़ते पढ़ते 4 घंटे से पढ़ रहा होता मेरा फ्लो हो गया कि सेम पॉइंट दिखता हर चीज में बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री विश्वनाथ चक्र की रामानुजाचार्य की कमेंट्री किसी का कोई प्रश्न था होप आपको कुछ समझ रहा है सेकंड चैप्टर और अभी कर्म योग तो और मुश्किल आ गया हाँ सब लोग भक्ति योग का वेट कर रहे होंगे मुझे पता है भक्ति कर्म है ये भगवत गीता का सेक्शन है काफी टफ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हेडफोन लगाने से क्लियर आवाज आ रहा था क्या मैं क्या पहले आवाज क्लियर आ रहा हेडफोन इज गुड Yes, हाँ ठीक है देन आई विल स्पीक इन हेडफोन ओनली सो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण Hare Krishna, Dandavat Pranam.